नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड आई रियली होप सो बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव इंटरेक्टेड टू यू गाइज. आई हैड अ चेक अपॉन यू. बिलीव मी, आई रियली मिस्ड यू गाइज. अब आप बोलोगे कि इतना टाइम तो नहीं थे तो आपको कैसे पता यू मिस्ड मी और नॉट. I know it's been more than a year of not being present on YouTube, not being regular on YouTube, although tried to communicate through the community sections, through comment sections, and to personal messages and replies also. But yes, majorly I was absent. And there must be a lot of questions. What happened to me? Where am I? Am I teaching or not? And a lot more questions which you guys have put up time and again. And today, once and for all, I would definitely try to answer them very, very honestly. आज सावन का आखिरी सोमवार भी है और मैं व्रत भी रखा हूँ, तो बहुत अच्छा से मैं ऑनेस्टली सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा. कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरा देखो बिकॉज यू विल गेट टू नो व्हाट इज बिहाइंड द कर्टन्स. ठीक है, पर्दों के पीछे क्या होता है आपको जानने को मिलेगा. आई एम जस्ट लाइक यू गाइज. मैं हमेशा आपसे रिलेट भी कर पाया बिकॉज आई एम जस्ट लाइक यू एंड देयर ट्रबल्स आर सिमिलर ऑल्सो एंड यू विल गेट टू नो a lot of things, and maybe if you are in that space, if you are in that mental like I would say not so good mental space, then you will know how to fight it out. ठीक है, तो थोड़ा सा देखना आगे. थोड़ा सा पीछे से जाते हैं, वापस शुरुआत करते हैं. When I left, I would say I took a gap. I didn't know कि इतना लंबा गैप हो जाएगा, but I took a gap. Then my last 3 uploads were like really good. Lot of people joined this channel. The family grew. Even I got various brand collaborations also, as you can see. ये एक ही snippet है, but I got almost 3 to 4 brand collaborations as well. Still now I'm getting it, but वहाँ से यहाँ तक का सफर that my YouTube channel almost got demonetized again. And most importantly, I broke your heart. I was not able to reply to your messages, calls, and what not. You tried to reach me out, and मैं reply कर रहा था, but I know कि अभी भी inbox के अंदर बहुत सारे messages ऐसे पड़े हैं जिनको मैं reply नहीं कर पाया. And I'm genuinely sorry for all of you because मैंने हमेशा आप लोगों को एक फैमिली समझा है and इस फैमिली से अचानक से एब्सेंट हो जाना, it was not something that I wanted to do. It happened. And जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़े हैं, जो लोग जिन्होंने मुझसे एक बार भी इंटरेक्ट किया ना, they know that I'm not such a person जो कि ऐसे ही कुछ भाग जाए. ठीक है, कुछ करके. I know that I broke your trust because you guys needed me at some point, but I was not there. I remember कि बहुत सारे लोग 11 of our student got SI. ठीक है, बन गए वो SI. They eventually went on to SI, become SI, and वो लोग मिलना भी चाह रहे थे. I was not able to meet any of them yet, but their messages and all बहुत ज़्यादा खुशी हुई इन सबको जानकर, and I did congratulate them also. And अभी यूनिफॉर्म के अंदर पिक्स भेजते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो congratulations to all of them. But जो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, they needed me, and even if I tried to approach try to reply to the messages, I was not able to respond to all of them, and I'm genuinely sorry for it. There was a course which was running, I couldn't complete the course as well. I'm genuinely sorry for everything, but there was specific reasons for it, and I am honestly going to tell you today itself reasons for my absence. The very first is शायद आप लोगों को पता होगा कि मैं पटियाला में रहता हूँ. लाइक मेरा घर पटियाला में है. अभी मैं पटियाला में नहीं रह रहा हूँ, बट माई होम टाउन इज इन पटियाला. लाइक मेरा घर पटियाला में. सो 1995-1996 के आसपास बहुत ज़्यादा हैवी फ्लड्स आए थे. इनफैक्ट 1994 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लड्स आए थे पटियाला में. एंड सिंस देन देयर वाज नो फ्लड्स एज सच. बट 2023 के अंदर आप जाके गूगल कर सकते हो, देयर वर मैसिव फ्लड्स. एंड मैसिव फ्लड्स में भी जो हमारा एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे. सो वाई एम टेलिंग यू दिस कि उससे फ्लड से क्या हो गया, आई विल टेल यू. द पॉइंट इज कि मॉनिटरी लॉसेस हमको हुए. डेफिनेटली वी हैव लाइक हमारी कार खराब हो गई, हमारे को कुछ, मेरा लैपटॉप खराब हो गया. आई हैड लॉट ऑफ मोर कंटेंट फॉर यू गाइज, बट इवेंचुअली माई लैपटॉप वॉज लाइक गॉन एंड आई वॉज नॉट हैविंग दैट सोर्स ऑफ रिसोर्सेज टू बाय अनदर लैपटॉप एंड डू द स्टफ. बट चलो वो ठीक है, मॉनिटरी रिसोर्सेज हुई, कुछ लॉस ऑफ लाइफ भी हुए, बहुत कुछ हुआ. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वर्स्ट थिंग आई वुड से was my mother got a liver infection due to contamination of water that my mother consumed. मेरी मम्मी को एक बहुत ज़्यादा सीरियस लिवर इन्फेक्शन हुआ था. अभी एक और हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था दैट हर मदर ऑल्सो डेवलप सम सॉर्ट ऑफ अ लिवर इशू. सो शायद वो रिलेट कर पाएंगे. जिन लोगों को पता है कि लिवर इशूज आर सो मच ट्रबल बिकॉज लिवर हमारे बॉडी में एक ही होता है. एंड शी डेवलप्ड सच अ हाई लेवल ऑफ लिवर इन्फेक्शन. मतलब मैं नंबर्स
के बारे में क्या बताऊँ आपको, द वैल्यू वॉज 300 जो होनी चाहिए थी 20, ठीक है. दैट इन फैक्ट देयर ट्यूमर स्ट्रैंड्स वर डेवलप, ठीक है, एंड ट्यूमर लीड्स टू व्हाट, कैंसर, यू नो गाइस, ठीक है. तो इट वॉज दैट सीरियस एंड माई मदर यूज टू वेंट टू दी हॉस्पिटल. इन फैक्ट शी वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 3 months, जिसमें एक महीना शी वॉज कम्प्लीटली हॉस्पिटलाइज. द रेस्ट 2 months वर जिसमें उनको लाना ले जाना होता था. शी यूज टू कम लिटिल बिट ऑफ रेस्ट एट होम एंड देन शी यूज टू गो बैक अगेन. एंड ये सभी के सभी जो मेडिसिन थी देन शी यूज टू बी इंजेक्टेड ईच एंड एवरी डे. यहाँ पर अगर आप जूम करके देखोगे तो मेरी मम्मी का नाम भी लिखा है, मंजूषा. एंड दिस वॉज अ वेरी रफ टाइम फॉर आवर फैमिली बिकॉज सीइंग योर मदर गोइंग थ्रू लाइफ थ्रेटनिंग आई वुड से इन्फेक्शन और वट एवर इशू इज देयर, दिस वॉज अ वेरी टफ टाइम. एंड इस टफ टाइम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो गई इन आवर फैमिली. देयर वाज अ सीरीज ऑफ डेथ्स दैट हैपेंड इन माय फैमिली एंड people associated with me personally also. Like for example, I lost my bade papa, I lost my ताऊजी. In fact when I'm recording this video अभी उनकी recently ही आज या कल में उनकी बरसी है for 1 year जो होता है. Then I lost my mommy as well. Then I lost my best friend के क्या कहते हैं पापा was something that he lost. Then my Raki sister lost his mother. Then along with this मतलब और भी बहुत सारी deaths हमारी family में हुई. The last one which was the most hurtful one, this happened to be in June itself, ठीक है. And this is something but my nephew died. मतलब मेरे से 2 साल छोटा, in fact 2 साल क्या 1 साल छोटा है मुझसे. Ayush is the name and Akash, Ayush, we were like I would say we were like brothers, है ना. वो nephew और वो वाला relationship हमारा नहीं था, चाचा भतीजे वाला relationship नहीं था. It was more of we were brothers only and he died and this was one of the most devastating feeling that I ever had in my life. So even though I tried to come back pretty soon, but every month there was a death which was happening and this was not a good space to be in, especially my mother being such ill. इसके बाद एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताई that 2022 के अंदर मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर भी किए हैं. ये आप सभी लोगों को पता है, जो लोग भी मुझे जानते हैं पहले से, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैंने कई बार मेंशन किया होता है. बट इन 2022 itself I eventually wrote another exam which was somewhere to Ministry of Defense and I cleared this exam. But the point is I was not joining it because I'm passionate about teaching and all. आपको पता है my first preference is always teaching. But with these things happening in my life, I realized that my father is going to get retired. मतलब उस टाइम पे मुझे पता था कि मेरे पापा रिटायर हो जाएंगे, जो कि अब हो चुके हैं रिटायर. तो I will be the earning member of the family and I need to pull up my socks. I need to be accountable enough and I need to be in a space to be the head of the family. And therefore I don't want to join the job as such because I was doing good. I was producing content, I was earning decent as well, sitting at home and working from home only. But I had to join this Ministry of Defense job because it's provide me a constant source of income as well. But this means ये सब कुछ हो रहा है and I had to go away from my home. ये मेरी home posting नहीं थी. I had to leave my home. It was a little far off place. It was not reachable. ऐसा नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा दूर थी घर के, but it was quite far. I couldn't do up and down from my home on the regular basis. That was not it. And to make things worse, when these things were happening, I shifted onto a new place where I was just not able to relate with it. After joining a government job, अगर आप लोग में से किसी ने भी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन किया, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्लर्क का एग्जाम भी क्लियर किया था, आप लोगों ने मुझे बताया था. अगर आपने कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब की है, फिर अगर आपके किसी दोस्त ने, किसी फैमिली मेंबर इज इन गवर्नमेंट जॉब, तो आपको रियलाइज होगा कि गवर्नमेंट जॉब इज नॉट फॉर एवरीवन. बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक लेम एंड लेड बैक एटीट्यूड देखने को मिलता है. आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू रिलेट विद दिस. एंड मेरी जॉब के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी, बिकॉज मतलब प्रॉब्लम भी है, राइट. आई एम स्टिल इन जॉब. This is because it is under Ministry of Defense and there is a particular department which I cannot talk about. I cannot tell on the social media itself. तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हमारे को phones allowed नहीं है. There are no mobiles. No mobiles are allowed while you are working in that particular time period. So from 8 onwards up to the 5, I don't have access to any sort of mobile, any sort of calls, nothing. Nobody can reach me. I cannot reach to anyone. And this is a huge problem because of whatever is happening. आपको बताया मैंने, वो सब कुछ हो रहा था. एंड एवरी मंथ आई वाज गेटिंग अ न्यूज़ which was so bad. Then my mother health, my father's health, like a lot of things were deteriorating and I was not able to do what I wanted to do in my life. ये सब कुछ होने के साथ साथ this was a terrible space. Not having mobile phone is a terrible space to be in.
anxiety kicks in, stress kicks in, and fear of a loss. Now fear of a loss is something which was the most terrible space to be in. क्या हो रहा था कि यार I was so much overthinking because I was not able to explain my emotions to anyone. I was in a new place and everything, and मेरे को I could feel that another loss is going to happen. And ऐसे करते करते in the matter of 1 year 7 to 9 deaths happened. ठीक है, और one after the other, and I could sense that something bad is going to happen. And वो feeling जो है ना कि I know कि something is going bad is going to happen, but I cannot do a shit about it. ये जो है ना यार, ये बहुत ही ज़्यादा टेबल फीलिंग होती है, शायद आप लोग रिलेट कर पाओ. When your mind goes bad, ठीक है, turns back against you, and वो चीज़ सच होने लग जाती है, then you start questioning yourself कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ. You just cannot think any positive about it. And I have been a positive person, believe it or not. I have been a very positive person in my life. जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है. But it was just a space to be in, and ये rough patches आते हैं हर एक की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में भी आया है. And this happened कि मैं थोड़ा डर के मारे कह लो, कुछ भी कह लो, I started constantly traveling. मैं हर weekend अपने घुट के घर चल जाता था. And with this constant traveling, what started to happen is, although I was very much into physical fitness and everything, but I lost control over my food. Health issues started to develop, and 2 times I personally got hospitalized. I had to leave to the hospital to be there. And one was some chest infection was there, and second was this is the recent one which happened 2 to 3 months back only. This was like my kidneys, मेरी दोनों kidneys के अंदर they were cyst and all that was found. And ये सब infections की वजह से हो क्या रहा था, I used to look like this, ठीक है, then I started looking like this. Now अभी आप लोग हंस सकते हो इसके ऊपर शक्ल देखकर, but I know how terrible the space was. Although I am not looking like this anymore, but yeah, I'm not looking like this as such as well. So I'm in a transition phase now. By the way, I lost bonds. Now what is the worst possible matchup could be? You are you are somewhere in the stress, you are overthinking a lot, you are thinking very very bad stuff about it, and you don't have anyone to talk about. This is something which was the most annoying thing as well, because when I was going through a lot of stuff, जो मैंने 1, 2 और 3rd point पे आपको बताया, and in fact 4th point पे बताया, I thought I would be having a lot more people to talk to, and मैं यहाँ से de-stress हो जाऊँगा. But eventually other way around happened. People were not available because somewhere I was not available for them because of these reasons when I was busy with all the stuff happening in my life. And आपको पता है, मैंने आपको बताया भी कि phones were not available. 5 बजे के बाद आपको phone मिल रहा है, then you have to prepare food and everything and what not. तो आप थक हार के अल्टीमेटली सो जाते हो, घर पे बात कर लेते हो. तो मैं I was not available for them, and I don't say bad about them, but they with my absence they also like our bonds got loose, ठीक है, to be very frank, and they were not there for me. So I was again, this loop kicks in, ठीक है. Eventually I was there was someone very close to my heart, very very personal sort of relationship. Eventually she was not there as well, like she is not there, she eventually left, and this was again a very bad phase to be in. बट कहते हैं ना यार कि मैं हर एक बात में हमेशा मानता हूँ. 2018 के अंदर भी मेरे पास 2018 का भी एक सा टाइम पीरियड था जब मेरे पास ऐसा ही एक काइंड ऑफ फेज आया था, एंड तब भी मैंने एक चीज़ सीखी थी जो मैंने इस बार भी एप्लीकेबल करने की कोशिश करी, दैट इफ आई एम गोइंग डाउन 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 डाउन, अभी इस पॉइंट के बाद ना और नीचे नहीं जा सकता मैं. अब इसके बाद ना एक ही चीज़ हो सकती है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर उठ सकता हूँ. शायद मैं कम उठूँ, चाहे मैं ज़्यादा उठूँ, डजंट मैटर, बट एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज हो जाता है कि यार इससे पूरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ अच्छा ही होगा. एंड दिस इज समथिंग जो कि मैंने फील किया व्हेन आई गॉट कॉन्शियसनेस अबाउट स्पिरिचुअल एनर्जी. नाउ मैं काफ़ी मानता था नेचर और एनर्जीज के अंदर, बट समवेयर और द अदर फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स आई वाज नॉट स्पिरिचुअली inclined that much. बट कह लो इनिशियली, कह लो फियर, कह लो कुछ भी कह लो, वो इनिशियल भगवान के दर पे जाना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द थॉट्स दैट आई वाज हैविंग. आई डोंट वांट एनी ऑफ द थॉट्स टू बी ट्रू, एंड हल्के लिए करते करते आई गॉट स्पिरिचुअली कॉन्शियस अबाउट things, about bigger powers and all, and this is something which have helped me get over that space. I started challenging myself. I went on to some solo difficult treks and all. I started talking to people. I started working on my various hobbies, interest, cycling, physical fitness. ये सब कुछ मैं अभी करने लगा था, and this is something which have definitely happened to make some difference. Then I made new friends, and I'm really thankful as well, because on my new job I was not at all enjoying the job itself, but family को convince करना कि एक बहुत ही अच्छी reputed आप job छोड़ रहे हो, government job छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता. और मैंने भी छोड़ी नहीं है, by the way. I am still in job.
एंड द रीजन इज आई थिंक प्रेटी मच सिंपल, यही होगा कि आई मैनेज टू मेक सम गुड फ्रेंड्स, गुड कलीग्स, एंड इसमें से एक दो तो ऐसे हैं जिनके साथ मैं अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा ओपन अप हो पाया, एंड आई रियली थैंक देम कि दे हैव बीन इन माई टफ टाइम्स व्हेन आई वाज क्राइंग एंड ऑल, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ रफ पैच स्पेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो थैंक यू ब्रदर्स, ये नहीं बोलूँगा। देन टाइम मैनेजमेंट वॉज अ बिग ट्रबल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद द टाइम थिंग एंड ऑल आई शिफ्टेड, मतलब मैं सब कुछ अपना रूटीन ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। I now like I used to have dinner at 9 p.m. but now I had dinner at 6:30 p.m. The reason is pretty simple because I wanted to get back, and मुझे पता था कि अगर मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊंगा, तो मुझे एक प्रॉपर रूटीन चाहिए, उसके बाद ही I can actually come up and stand straight in front of you guys that I am able to manage it. Consistency is the key. And मैं ऐसा नहीं करना चाहता था कि मैं इतने लंबे टाइम तक एब्सेंट हूँ। मुझे बीच में कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, ऐसा नहीं था कि मैं हर दिन ही बुरे स्पेस में था। I was getting good space but then something bad is going to happen, bad बुरा हो जाता था। बट ऐसा नहीं होना चाहता, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था कि मैं एक बार अच्छे स्पेस में आऊँ और मैं एक दो वीडियोस बना दूँ और उसके बाद फिर मैं गायब हो जाऊँ। बट दिस वाज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, देयरफॉर आई टुक सम टाइम ऑफ, आई वर्कड अपॉन माई सेल्फ एंड नाउ आई एम वेरी मच बेटर। आई एम नॉट द बेस्ट वर्जन येट, बट आई थिंक वो बेस्ट तभी नहीं बन सकता था बिकॉज मैं जब तक आपके सामने आकर माफ़ी नहीं मांग लेता, आपके सामने आकर, अपनी फैमिली के सामने आकर मैं अकाउंटेबल ना हो जाता, तब तक ये बात नहीं बनती थी। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं, तो वन मोर टाइम अगेन आई वॉन्ट टू से सॉरी टू ऑल ऑफ गाइज जिनको मैंने हर्ट किया है। आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन ऑल दोज थिंग्स जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस करी थी, जो भी आप लोगों के लिए लेके आने वाला था। आई एम अ सोलो पर्सन, आई डोंट हैव अ टीम। मुझे रियलाइज भी हो रहा है कि आई नीड टू वर्क अपॉन एज अ टीम एज वेल। आई नीड सम टीम बिकॉज एक इंसान सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, एंड विद दिस पर्टिकुलर जॉब दैट आई एम इन, मुझे और लोगों की ज़रूरत होगी, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट। एंड मैंने बहुत सी चीज़ें अच्छी करने की कोशिश भी करी है। व्हेन इनिशियली मेरे पास फंड्स नहीं होते थे तो मैंने वेबसाइट बनाई थी खुद ब खुद सीख कर, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग इतने मेरे पास पैसे वगैरह नहीं होते थे टू इन्वेस्ट इन दैट। बट देन अभी थोड़ी बहुत सैलरी आ रही है, देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू डेवलप एन ऐप। इनफैक्ट ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड, इट इज़ बीन ऑन द प्ले स्टोर ऑल्सो, सारा काश के नाम जैसा ही है। बट कभी अगर आप लोग चाहोगे कि मैं वापस आकर पढ़ाऊँ आप लोगों को, अगर आप लोग मुझसे स्टिल एक्सपेक्ट करते हो कि आई नीड टू ब्रिंग अप सम कंटेंट, देयरफॉर मैं डेफिनेटली आप लोगों के लेकर आऊँगा। बिफोर आई से जय हिंद, देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू से टू यू गाइज दैट आई नो कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे और कुछ लोगों ने बहुत कुछ मुझे बोला भी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस। बट यार बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले विच जेन्युइनली लव्ड मी, एंड जेन्युइनली गाइज आई एम टेलिंग यू, आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और वापस आया हूँ। एंड मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब आई कैन नॉट टेल हाउ मच स्पेशल आई फील। मैंने अपने पापा को बताया, अपनी मम्मी को बताया, एंड मैं फादर एंड मदर यूज्ड टू टेल कि ठीक है यार देख, तू जो करना है जिंदगी में तू कर लियो, तेरे को आगे तैयारी करनी है, तो इफ यू वांट टू गो फॉर यूपीएससी और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट बी अकाउंटेबल टू दोज पीपल। एंड देयरफॉर आई हैव ट्राइड टाइम एंड अगेन टू रिस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस एंड ऑल, बट आप लोगों ने शक्ति दी यार। इनफैक्ट सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं ये वीडियो कैसे बनाऊंगा, और मैं सच में बहुत टाइम भी ले लिया मैंने वीडियो बनाने के लिए। 15 अगस्त को वीडियो लेके आने वाला था, इनफैक्ट मैं 1 अगस्त को वीडियो लेके आने वाला था, बट समवे और द अदर टाइम डिलेड बिकॉज डर लग रहा था यार, पता नहीं आप लोग क्या बोलोगे, पता नहीं आप लोग क्या करोगे। बट आज एक मैसेज आया मेरी पुरानी स्टूडेंट का, एंड ही मेड मी फील रियली नाइस। एंड उसके बाद मुझे याद आया कि यार आप लोगों ने कितने मैसेज किए हैं यार, कितने अंडरस्टैंडिंग रहे हो आप लोग। तो अब जब सब चीज़ें सही हो रही हैं तो यार आई वॉन्टेड टू फील सॉरी फॉर वट एवर आई डन। आई रियली वॉन्ट टू अपोलोजाइज। मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, बट मेरे हाथ सच में जुड़े हैं, इतना ट्रस्ट कर लीजिए आप। सो बस इतना ही था यार, है ना। अगर आप लोग किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, प्लीज़ यार कमेंट्स में बताना, प्लीज़ बताना खुल के कि व्हाट हैज़ हैपेंड एंड वट एवर एग्जाम्स आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, किस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं। कुछ ये टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या कहते हैं, पोल से पूछूंगा अभी, ठीक है। एक पोल भी पोस्ट अप कर दूंगा, फिर यूट्यूब पे भी पोल डाल दूंगा टू टेल मी दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट दैट यू वांट फ्रॉम मी, बिकॉज इट्स बीन सच अ लॉन्ग एब्सेंस। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड प्लीज़ यार अगर कोई भी मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंग्जाइटी से गुजर रहा है, प्लीज़ अप्रोच मी पर्सनली, आज ही मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू द नेक्स्ट टाइम, हमेशा की तरह। जय